It's 17 hours. Boswa, sir. Bosua Arpita. Bosua, miss you. For sir, we have miss you. Okay, sir. Boswa, miss you, sir. बस फिर सर नहीं चाहिए ना Oh, फिर miss you. हाँ बोसुआ मिस यू अच्छा. Okay, okay, sir. शिवांगी बोसुआ Bonsoir, sir. your voice is your voice is a very dull one. What happened? Actually, I wake up now, that's why. Oh, fortunate. Anyone who can sleep in the daytime is fortunate. Okay, fine. So I think only two of you. We will start, and if someone joins in between, it's okay. So today is our 13th session, and we are going to discuss, you can see the topic, a l'école se présente. À l'école se présente. À l'école, to the school. To the school. Se présente is to introduce oneself. So today we are discussing about if you are going to your school or college, how you are going to talk to someone, how you are going to present yourself, how you are going to ask someone for his or her introduction. So all these things we will discuss today. This we have discussed in a short form in past class also. Introduce yourself. Je m'appelle Dheeraj Srivastav. J'ai 43 ans. J'habite à Muzaffarpur, right? Je suis étudiant, Yes. right? J'aime écouter de la musique. So these 5, 6 phrases we have learned in past also. Today we will also learn how to ask someone else about himself or herself, and also if you have to tell about someone, how you are going to tell about your friend. So we'll go one by one. So the topic is clear, a call to the school, yeah, in the school, and sa presente, introduce oneself, अपने आप को introduce करना. The first sentence is bonjour, je m'appelle Dheeraj. I think this is clear. Good morning, I am Dheeraj. J'ai 45 ans.
J'ai 45 ans. So j'ai is I have, a is for have, I have, 40 is 40, 5 is 5, 45 years. So the verbal meaning is I have 45 years, but in French, I am 45 years old is written in this format. J'ai 45 ans. Now you all know your age also and the numbering also of French. So now you can also tell someone j'ai 20 ans, 20 हो जाएगा, या j'ai 19 ans, ऐसा करके आपका बनेगा आपका तरफ. आप जो भी आपका 19, 20, 21 जो भी आपका एज है, accordingly you can make sentence. J'habite à Muzaffarpur. I live in Muzaffarpur. J'ai un frère. J'ai un frère. I have one brother. Right? So this is about myself. In 4 sentences, I told about my name, my age, where do I live, and I have one brother. Now coming to the second part, that is I'm asking someone else. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? So I think I have told that appel is means to spell oneself. Appel जो verb है फ्रेंच में, उसका मतलब होता है अपने नाम को स्पेल करना. So comment tu t'appelles? आप अपने नाम को कैसे स्पेल करते हैं? See how typical is the अगर आप जाएंगे word by word answer, word by word translation, sorry, तो इसका मतलब हो जाएगा how you spell yourself. But the general meaning is what is your name? Comment tu t'appelles? इसको थोड़ा सा हम टर्न भी कर सकते हैं. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Same meaning is same, but tu can be in the starting also and at the end also. Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Now, Kelaz. Kelaz as-tu? This is a new thing which I am introducing. Kelaz as-tu? तो जो मेरा एक आंसर है ऊपर में, j'ai 45 ans. j'ai 45 ans. उसका ये सवाल है. Quel âge as-tu? Quel मतलब how much, âge means how much is your age? आपकी उम्र कितनी है? Quel âge as-tu? अब इसको समझना है कि quel का मतलब हो गया कितना, how much, मतलब how many years. age is same like English age. How many years? as-tu. So Q के साथ लगा है तो it is as. ज के साथ लगा था तो ai. The same verb, have. When we will discuss now, very soon we'll start verb forms also. Then we'll discuss कि ये कैसे ज में a लगता है and q में a लगता है. But have का word है ये, have का verb है ये, right? So आप कितना साल रखते हैं वापस, अगर आप जाएंगे word by word translation, आप कितना साल रखते हैं, तो quel âge as-tu? J'ai 45 ans. आंसर हो गया. Someone has asked me, quel âge as-tu? And I replied, j'ai 45 ans. I am 45 years old. The last one is où habites-tu? Où habites-tu? Means where do you live? où हमने où देखा था कहां पर? When we were discussing accent. वहां हमने देखा था कि अगर यू के ऊपर, OU में यू के ऊपर अगर ग्राफ एक्सेंट आता है, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर. इसका मतलब होता है वेयर. एंड इफ OU इज विदाउट एक्सेंट, इसका मतलब होता है और. OU विदाउट एक्सेंट और, एंड OU यू विथ एन एक्सेंट इज वेयर. सो où habites-tu? Where do you live? And I will reply, j'habite à Muzaffarpur. फाइन. तो ये जो 3 नीचे के सेंटेंसेस हैं, दे आर क्वेश्चंस. लास्ट का प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? où habite habites-tu? Tu. Comment tu t'appelles? Tu. See, comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu?
राइट? तो ये आपका सवाल है, ऊपर वाला आपका आंसर है। फाइन। अब सपोज somebody, अब नाउ I'll tell you. So किसी ने मुझसे सवाल पूछा, कमो त्युतापेल केलाज आत्यु उ अबीत्यु, मैंने आंसर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क हिम क्वेश्चंस। और मैंने क्या पूछा? ए वू मिस यू, एंड यू सर, एंड ए इज एंड वू इज फॉर यू, रिस्पेक्ट, एंड यू मिस यू, यानी कि मैंने तो बता दिया अपने बारे में, अब आपके बारे में मैं पूछने जा रहा हूं। ए वू मिस यू एंड यू मिस यू, कमो वू जाप्ले वू, ये थोड़ा सा समझना है। कमो वू जाप्ले वू, यहां जाप्ले क्यों हो गया? सेम रूल, वू इज हैविंग एस एट द एंड, आपले स्टार्टिंग विथ ए वॉवेल, एस एंड ए विल कंबाइन। कमो वू जाप्ले वू, यानी हाउ यू प्रोनाउंस, हाउ यू स्पेल योर नेम। बट बिकॉज यहां पर वू लगाया हमने, तो वू के लिए आप वहां पे देखा, वहां पर अपेल था, यहां पर आपले हो गया, लास्ट में जेड आ गया। सो व्हेन वी विल डिस्कस हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, देन वी विल लर्न कि हाउ द वर्ब फॉर्म्स चेंज विद द सब्जेक्ट। इसको हम वी कैन आल्सो राइट कमो वू वू जाप्ले, कमो वू वू जाप्ले, यानी कि जो वू और त्यू है वो स्टार्टिंग में और एंड में कहीं भी आ सकता है। कमो वू वू जाप्ले, यहां पर दो वू क्यों आया है? हाउ यू प्रोनाउंस योर सेल्फ, एक वो आया है यू के लिए और एक आया है योर सेल्फ। आप अपने नाम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। सो आप और अपने दोनों के लिए वो आया, कमो वो जाप्ले। नाउ वहां था केलाज, केलाज वात्यु, एक मिनट, केलाज आत्यु, अब आ हैज बिकम आवे, हाउ आपेल हैज बिकम आपले, तो आ हैज बिकम आवे, कैलाज आवेवू, यानी कि आपके पास कितनी उम्र है, आप कितना उम्र रखते हैं। कैलाज आवेवू मीन्स आप कितने आप ओल्ड हैं, राइट? ऊ अबीते वू, वहां अबीत था, यहाँ अबीते हो गया, यानी कि एक हमें समझ में आ रहा है कि वेन एवर वी विल यूज वू एज द सब्जेक्ट, तो वर्ब में लास्ट में कहीं पर ई जेड लगता है, करेक्ट? आपले, आवे, अबीते, सबके लास्ट में इजेड आ रहा है। तो ये हमको एक कॉमन सेंस मिल रहा है कि ओके, व्हेन वी विल फॉर्म सेंटेंसेस, वर्ब के एंड में इजेड लगेगा इन केस ऑफ वू। ओके, सो ये हो गया रिस्पेक्ट के लिए। कोई बड़े हमसे हैं, कमो वुजाप्ले वू, केलाज आवे वू, ऊ अबीते वू, आप कहाँ रहते हैं, कितनी आपकी उम्र है और आपका नाम क्या है। Now the last three one is il sapel. Oh sorry, my mistake. मैंने नाम चेंज किया because name was a French name, but I forgot कि यहाँ पर il लिखा हुआ है. So il is for male members. So यहाँ पर अनन्या नहीं होगा. One minute. Just hold on. Let me correct it because फिर क्या हो जाएगा? Otherwise it will be like this only. Just hold on. Okay, so il sapel, यहाँ डाल देते हैं, we have a student called Prince. Okay. Okay, now I am introducing one of my friend. तो il sapel Prince, यानी कि ये अपना नाम प्रिंस बुलाता है, करेक्ट? ये अपना नाम प्रिंस बुलाता है। il a वॉतों, वॉतों, वॉतों क्यों हो गया? बिकॉज वॉ के लास्ट में टी है, आ इज ए, सो टी और ए कंबाइन कर जाएगा, इल अ वॉतों मीन्स ये 20 साल का है, इल अ वॉतों। अब आप देखेंगे वहां पर त्यू के साथ में ए एस था, वू के साथ में ए वी ई जेड था, इल के साथ में ए आ गया, इल अ वॉतों। एंड इल अबीत रियू, रियू इज रोड, इल अबीत रियू द्यू मिथनपुरा, और
मुजफ्फरपुर मीन्स ये रहता है कहाँ, मिठनपुरा रोड में इन मुजफ्फरपुर। रियू द्यू मिठनपुरा मतलब रोड ऑफ मिठनपुरा, मिठनपुरा रोड के लिए हम इस तरह से इसको बनाएंगे, रियू द्यू मिठनपुरा अ मुजफ्फरपुर। तो मैंने उसका नाम बताया, मैंने उसकी उम्र बताई एंड ऑल्सो आई टोल्ड वेयर ही लिव्स। सो अब आप देखेंगे विल गो बैक, यहां पर कहाँ गया, अच्छा त्यू के साथ अबीत में एस लगा था, राइट, त्यू के साथ अबीत में एस लगा था, ज के साथ एस नहीं लगा था, इल के साथ भी एस नहीं लगा हुआ है, इल अबीत। सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर ही का यूज करते हैं तो अबीत अप्रैल, ज का यूज करते हैं तो भी अबीत अप्रैल, व्हाट व्हेन यू यूज त्यू तो अबीत में भी एस लग जाता है और ए में भी एस लगता है, हैव उसमें एस लगता है, एंड वो के केस में इजेड इजेड इजेड। तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर हमको समझ में आ रहा है हाउ दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म। नाउ वी आर कमिंग फॉर द फीमेल, अगर कोई लड़की है उसके बारे में मुझे बताना है, ए एल एंड शी, यानी कि जो लड़के के बारे में बताया प्रिंस के बारे में, तो प्रिंस के बगल में एक लड़की खड़ी थी, तो अब मैं पूछ रहा हूं ए एल और ये इसके बारे में बताओ। तो एल सापेल अर्पिता, शी कॉल्स हरसेल्फ अर्पिता, एल आ सेम इल आ एल आ, दिस न फॉर्म, दिस न फॉर्म, न फॉर्म, दिस न फॉर्म। She is 19 years old. El Abit Ryudhu Jawaharlal Muzaffarpur. She lives in Jawaharlal Road in Muzaffarpur. Right? तो structure बहुत simple है. The only thing is that now इसको understand करना, and also I will request, I will suggest कि आप अब ये सारे sentences में you can change the year, the age, you can change the name of the road, you can change the name, and now in your family if you have 4 or 5 members you can start introducing them. ये आपका हो जाएगा practice. So every day you keep 10 minutes. 10 minutes I will go for a practice round. I will open my PDF and I will see the sentences. I will change the age, I will change the road, I will change the name, and I will try to introduce. So ja is I, il is he, el is she, and who is you for respect. Fine. ये हमने अभी तक देखा. So पहले हमने ja के साथ बनाया I, then you, you, then who is you for with respect, and il is he, and el is she. Now this is something which we need to understand. Le pronom sujet. Le pronom sujet, subject pronouns means वो pronoun जो subject की जगह पे आते हैं. Same in English also we have I, you, he, she, it, right? We, you, they. In English it is. Now see, singular में I की जगह क्या है, ज है, हमको मालूम हो चुका है. But अगर ज के बाद का जो word है, if that is starting with vowel, तो फ्रेंच में बहुत क्लियर कट रूल है कि 2 vowel साथ में नहीं आएंगे. जो पहला vowel है, it will change in apostrophe. तो यहां भी आप देखिए, ज के बगल में जो जे है वहां पे एपस्ट्रफी आया है और ब्रैकेट में लिखा है बिफोर वॉवेल्स. अगर वॉवेल के पहले ज आएगा तो ई विल डिसअपियर, एपस्ट्रफी विल कम. आई इज ज, यू इज त्यू, दैट इज आल्सो क्लियर. ही इज इल, और इट के लिए भी इल, मतलब इट जो है वहां उसके लिए एक अलग से कोई वर्ड नहीं है. If it we are using for masculine, we will use ill. She के लिए L, and if I am using it for a masculine, feminine, तो हम L use कर देंगे. जैसे कि हम generally in English हम बोलते हैं birds and animals के लिए it लगाओ, right? ऐसा एक अपना ये रूल है. तो it is a lioness, it is a lioness अगर बोलते हैं वहां पर फ्रेंच में इट नहीं होगा, एल आ जाएगा. एंड इट इज अ लायन की जगह पर
इल आ जाएगा, इल एंड एल, इट के लिए वही आने वाला है। नाउ गो फॉर द प्लूरल वन। ज का प्लूरल इज नू, वी, ज का नू, एंड त्यू का वू। सो वू इज ऑल्सो तुम सब, तुम लोग के लिए भी वू है। और इफ यू आर यूजिंग इट फॉर एन एल्डर, जो हमसे बड़े हैं, विथ रिस्पेक्ट, वहां भी ये वू है। त्यू का तुम लोग के लिए भी वू आएगा और रिस्पेक्ट के लिए भी वू आएगा। व्हेन यू विल रीड द सेंटेंस देन यू विल अंडरस्टैंड। जब हम सेंटेंस मेकिंग पे जाएंगे देन आपको समझ में आएगा कि वे कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है। इल का इल ही है, लास्ट में एस है बट इट इज साइलेंट, इल। एंड एल का भी एल है, एस इज साइलेंट। बट when you will use ILS के साथ में कोई verb जिसकी स्टार्टिंग होती है वोवेल से, तो ये S वहां पर उस वोवेल से कंबाइन कर जाएगा। जैसे कि इल अबीत, इल अबीत हो जाएगा, वेरी वेरी क्लियर, हमने देखा था अभी, इल अबीत और मुजफ्फरपुर। अगर ILS में हम यूज करेंगे तो इल जबीत हो जाएगा, क्योंकि एस जो है वो एच इज साइलेंट, एस ए से कंबाइन कर जाएगा, इल जबीत। सो जहां आप बोलेंगे इल जबीत, सामने वाला समझ जाएगा कि नाउ ही इज यूजिंग द प्लूरल ऑफ इल। इल अबीत इज सिंगुलर, इल जबीत विल बी प्लूरल। ऐसे इसको समझना हमको पड़ेगा। So they masculine ill with S and they feminine L with S. I think this is very very clear. इसमें कहीं कुछ और समझने की आवश्यकता हमको नहीं है। In the last class we discussed till 40, है ना, हमने डिस्कस किया था till 40, if you will check. So the, trua, kat, sank, sees, this, आप आए, ओंस, दूस, ट्रेज, वहाँ, वाते, वहाँ, द, थ्रॉत, थ्रॉते, थ्रॉत, द, थ्रॉत, थ्रुआ, करते करते हम आ गए थे कैरौत पे। कैरौत is 40. Now today we'll complete 50. So कैरौते सेम सिस्टम है, कैरौते कैरौत द, कैरौत थ्रुआ, कैरौत कात्र, कैरौत सैंक, कैरौत सीज, कैरौत सित, कैरौत विथ, कैरौत नफ, and cinquante. Cinquante is 50. So this 10, one 20, trot 30, quarante 40, and cinquante is 50. Fine. ये वापस I think I have suggested every day keep 10-15 minutes for the revision, not more than that. हर दिन प्रयास करना है कि एक PDF को हम फटाफट फास्ट वे में हम उसको देख जाएंगे। और जो भी उसमें लिखा हुआ है आई विल ट्राई टू प्रोनाउंस, राइट, आई विल ट्राई टू प्रोनाउंस। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन कि मेरा साउंड सही है या नहीं, you have an app called Google Translator. You can have that app, you can put English, वो English से French में convert भी करेगा, and उसके बगल में speaker का बटन है, you press that, it will also give you the right sound. For long run, you have to start using Google Translator for checking if you are pronouncing it in the right way. Fine, तो ये हमारा numbers हो गया। Now, appreno, let's learn कुछ ऐसे phrases और words जो कि शायद हमको समझ में नहीं आए होंगे। We will again discuss. Se presente, to introduce oneself, that is se presente. Topic हो गया ये। Como va tu, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। How are you? Como talevu is how are you for elder. Pardon, pardon is French, pardon is English. Pardon, pardon. Pardon का यूज कहां करते हैं? Who will tell me? Anyone? Where we use pardon in English? To repeat a sentence. Correct. If I am talking to someone
and what he or she has told, I am not clear. So I will say pardon. फोन पे हम बात करते रहते हैं, समझ में नहीं आया, pardon me, right? सेम कोर्ट में भी जो लॉयर है वो बोलता है जज को, I beg your pardon. I beg your pardon मतलब he is trying to either tell him to repeat or he is trying to put his thoughts. So pardon. Now pardonnez-moi. Pardon, pardon, pardonnez-moi, pardon me. अब यहाँ पर pardonne क्यों आ गया? Because हम किसी को अगर बोल रहे हैं pardon me, तो जनरली कोई हमसे बड़ा होता है, हम उसको ही बोलते हैं pardon me. So because he is elder, we have to give respect. So we have made his pardonne, EZ. Respect वाला जो बनता है वो है pardonnez-moi. So pardonnez-moi, miss you. You can make pardon me, sir. Pardonnez-moi, miss you. Now second उसके बाद वाला है excusez-moi. Sorry, excuse-moi. तो पहला वाला excuse-moi, s'il te plaît. Now this is a new thing. थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना है. We have discussed s'il vous plaît, excusez-moi, miss you. But यहाँ पे हम बोल रहे हैं excuse-moi, s'il te plaît. यानी कि जो हमारे दोस्त हैं या हमसे जूनियर हैं, जहाँ I am not ready to use vous, मैं रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं you यूज करने वाला हूँ, the normal you. Excuse me, moi. Excuse me, s'il te plaît, please. यहाँ पर देखो आप वो की जगह पर तो आ गया, तो त्यू का एक फॉर्म है, राइट? एक्सक्यूज moi, s'il te plaît, excuse me please for friends and juniors, and excusez-moi s'il vous plaît, that excuse me please for seniors, for elders. A and aussi also. मैं भी जाऊंगा, moi aussi, मैं भी, also, I also. Suppose if somebody is telling you कि भाई मैं इस पार्टी में जा रहा हूँ, फंक्शन में जा रहा हूँ, तो you can say moi aussi, मैं भी जा रहा हूँ या मैं भी आऊंगा, moi aussi. Two words are more than enough, moi aussi. Rue is a road or street, and a with a grave accent is at, to, in. For all these three prepositions, we use a with a grave accent. So these are the few, this thing. Now we have finished. Now what I want all of you to read these sentences one by one. So we are having 3 candidates, 1, 2, 3. Okay, we have 3 slides. So the first slide will be with Shivangi. You can read one by one. Okay, sir. Bonjour, je m'appelle. From the top. The topic. Oh, from heading, sir. From heading. À l'école, c'est Sir. Sir prisoner. Présente. Sir, présente. Okay. Bonjour, je m'appelle Shivangi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Shivangi. That's it. J. Okay. J'ai 19 ans. j'habite Muzaffarpur. J'habite Muzaffarpur. J. So we have to pronounce J or J or J. J. जो वो उर्दू वाला जो ज होता है ना वो J. J. शिवांगी, it is AI है ना, AI है तो J. ओके, J I है तो वहाँ पे J बोलेंगे J सर? हो जाएगा, हाँ. J. ओके सर. J après. E पे ग्राफ लगा हुआ है, E पे ग्राफ है.
यस सर ग्रेव है। फ्रे क्या होगा? फ्रेयर, फ्रेयर, फ्रेयर है वाला आएगा, फ्रेयर फ्रेयर। हाँ ओके। सर। कम्मो तुत्तापेल कम्मो कम्मो अप्पेल तू। टी है और ए है, आपस में कंबाइन होगा। कम्मो तुत्तापेल वो तो सही आपका हो गया। नेक्स्ट वाला, कम्मो अप्पेल तू। कमो तापेल, तो है ना पहले, तो तापेल हो जाएगा। कमो तापेल त्यू। ट्यू। वेरी कम्मो गुड, तापेल त्यू। वेरी गुड। नेक्स्ट, कोयल कोयल किल, किल, इज किल। केल केल इज आतू। अब देखो त्यू। वापस वापस आप भूल रहे हो। किल का लास्ट में एल है और आज के स्टार्टिंग में ए है। कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल दोनों कंबाइन होगा, क्या बनेगा? केलाज। किलाज आत्यू। वेरी गुड। लास्ट, उ हैबिटेट उ हैबिटेट्यू। उ अबीत, उ अबीत त्यू। उ अबित्यू। अबीते, अबीते तभी आएगा या तो ई के ऊपर में एक्सेंट रहे तो आ सकता है, या लास्ट में जेड रहे तो आ सकता है, अदरवाइज अबीत। ओके, नाउ कमिंग टू अर्पिता, नेक्स्ट वन। Excuse me, sir. Sir, may I repeat that one slide also? ओके, Yes, sir. Thank you, sir. Bonjour. Okay, sir. With heading, right, sir? Okay. Alio, Alicol, Alicol se presente. Bonjour. Je m'appelle ज, ज, सर जो ज उर्दू में में जो लगता है बोलते ना वो उर्दू वाला ज, य ज, ज में एक लगता है नीचे बिंदु, उर्दू में हाँ नुक्ता जौ को हम हाँ ज जौ बोलते हैं, नुक्ता, नुक्ता बोलते हैं उसको। हाँ, ज, ओके ओके सर ओके बोंजू ज में अपले धीरज जमापेल, राइट सर जमापेल, यमापेल ज, ओके सर जमापेल। यमापेल धीरज आपका साउंड है ना, ज का य आता है, उसको थोड़ा सा य हाँ, य सर ऐसा मतलब थोड़ा प्रेशराइज करके य में अपल धीरज हाँ ज। ओके ठीक है, चलो आगे। ओके ओके सर जे क्वारंटे कैरौत, सिंकांस कैरौत, कैरॉट ओके सर जे कैरॉट सिंक आ सैक, क्या सर सैक, सैक, सैक सैक, ओके लास्ट में क है, ओके सैक। सैक हाँ, अब वापस देखो कि सैक में क है और ए में अ है, सो कॉन्सोनेंट एंड वोवेल दोनों आपस में यस सर जुड़ जाएगा। सैकों, सैका सैकों। सैकॉ हाँ ओके सर वापस से ठीक है। सर एक बार हाँ, जे क्वारंटे कैरौत, कैरॉट सॉरी 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 सर कैरॉट राइट जे कैरॉट सैकॉ वेरी गुड। राइट सर ओके जे हैबिटे जबीत, जबीत जबीत और सर ए को क्या पढ़ेंगे देखो ए के कारण ना ये ज हो गया, जबीत, जबीत, जबीत जबीत, सर अ, यबीत मुजफ्फर अ, यबीत मुजफ्फरपुर ओके सर जिया जे, फ्रेयर जे आफ्रे अ, फ्रेयर, फ्रेयर, फ्रेयर हाँ, ओके गो फ्लावर विद द वाला, फ्लो फ्रेयर, हाँ, ओके सर जिया जे, फ्रेयर जे सर आप एक बार पूरा पढ़िए फिर जे, मैं पढ़ती हूँ अ, फ्रेयर। जे जे आ फ्रेयर वेरी गुड। okay sir como tu tapel and after that como tapel tu वेरी गुड, como tapel tu यस। okay sir sir क्वेल को क्या पढ़ते हैं किल,
quel. Okay. Quel is atiu. वापस डिस्कस किया था. L consonant, A vowel, combine. Quelas. Quelas. Okay. Quelas atiu. Very good. Okay, sir. You U. habited tu. U. U. Okay. Okay, sir. U habited tu. Abit. H का Abit. साउंड नहीं है. Okay, हमने sir, डिस्कस yes. किया था कि H का नहीं साउंड होता नहीं है. है, वो A का साइन है. Yes, sir. U, Okay, sir. abit, tu. Abit tu. Very good. Okay, sir. Now your next slide. Okay, sir. सर आप एक बार फिर से पढ़िए तो Okay. सर मैं पढ़ A, पाऊंगी. it is a, who miss you. A who miss you. A who miss you. Comment vous appelez-vous? Comment vous vous appelez? Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? Il s'appelle Prince. Il a 20 ans. Il habite rue du Mithanpura और मुजफ्फरपुर. ओके सर. इट व्यू म्यूजियम. एक नहीं, तो नहीं आएगा. ए बस. ए. ओके. ए. हाँ. ए व्यू वो. म्यूजियम. वो. वो. ए वो म्यूजियम. नेक्स्ट. कमोवा अपेल वो. वापस वो का अंत में एस है, अपेल में ए है, कंबाइन होगा. कमोवा कमोवू. जापेलियो. कमोवू. कमोवू जापले. जापेल. जापले. 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 हाँ. कमोवा जापले. कमोवू. वो. कमोवू. You have got muted. Unmute करके बोलो. Okay. Prince. Last slide. Unmute. E. Ali. A-L. Ali's up. A-L. A-L. हाँ. Ali's. L. Apiti Arpita. L Sapel. L Sapel. L. Sapel Apita. Yes. L. So here is written L-A. Dix New. L-A. Disnuff. L-A. Disnuff. Is Disnuff. enough. Disnuff. L. Habit. You do. Abit. Abit. L. Apit. You do. Ryudu. Jaiswal. Muzaffarpur. अब वो तो इंग्लिश है भाई. जवाहरलाल. उसमें क्यों घबरा रहे हो? जवाहरलाल. मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर. जवाहरलाल मुजफ्फरपुर. Very good. Now this one you speak till pardonnez-moi, and then Shivangi will speak from there. Start from the first one. Sir. Sir. Presenter. Presente. Presente. हाँ. Come at was Como. to. Como. Come was to. Como vatiu. Como vatiu. Como Alex was. Como tale. Como के लास्ट में टी है, आले में ए है, कंबाइन होगा. Como Como tale. tale. हाँ. Como tale वो. Ooh. Pardon. 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 Pardo. Pardon. Pardon. And last. Pardon. Pardonez moi. Pardonne. Pardonne. Z का साउंड नहीं है, सिर्फ ए है. Pardonne.
pardonnez-moi. मुआ, मुआ, Moi. हाँ। और फ्रेंच में, फ्रेंच Excuse-moi. में, बस स्टॉप। फ्रेंच में डॉ नहीं है, डॉ नहीं है, टॉ नहीं है। डॉ की जगह दॉ बोलना है, टॉ की जगह तौ बोलना है। ओके, एक्सक्यूज से आप बोलो शिवांगी, एक्सक्यूज। Excuse-moi, s'il te plaît. Excuse Okay. me, please. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excuse me, please for elder. ए, And इट इज ए। sorry, हम्म, A and or C also. Rio Road रियू, Street. Rio, sorry, हाँ, Rio Road Street. and At to two. in. Yes. Okay. Now this one has come. Arpita has come. Arpita will speak this one. So